ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम. So today we are going to complete the topic of cells. We are going to complete the past paper of cells, and then we'll begin with the other chapter, cell membrane. I apologize for the delay in starting the class. I was having other career counseling sessions before this class, and due to that, it took us a while to start the biology's class. Okay, so with this being said, Asha, one more announcement that I believe till tonight, my admin is going to upload the video, the second recording of yesterday's class of the stage micrometer and all the calculations. Okay, so there was a slight technical issue in, I don't know why was it, but there was a technical issue in that video apparently. So we had to record the video again, and it will be uploaded till tonight, inshallah. Okay, so those who were not present yesterday, we are requested to listen to that recording because it's very important, and we covered a very important concept of calculations, and it's a commonly asked question in your past papers. Okay, so it's a request that you listen to the recording because now you'll have a 5 days break in between, so you can easily listen to it. It's not very long. It's, I think, just 25 minutes long. Okay, so please do listen to that recording. And now let's begin with the past papers of the last chapter that we covered, cells. Okay. So अच्छा जी, one thing that I would like to mention is that A levels and CAI, they're habitual of giving such a giant and such horrible names. Okay. So do not get confused with these horrible names. Okay, just look at the concept and just look at what they're trying to ask. And do not get confused कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था. वैसे तो you'll study about Mycobacterium tuberculosis in the chapter of infectious diseases. ठीक है, but इस तरीके के they'll give you so many names. वो आपको confuse करना चाह रहे होते हैं. So just it's a request कि do not get confused. Just try to find out the keywords that are given in the questions. ठीक है, तो मैं पहले आपको keyword identification सिखा रही हूँ जो आपने पेपर 2 में करनी होगी. ये उस कीवर्ड के हिसाब से you will answer your script. ठीक है, so they are basically saying state 3 structural. So structural features is your keyword. State 3 structural features that are found in both tuberculosis and animal cells. Okay? Apparently, with tuberculosis and with bacteria being written before tuberculosis, we can understand that Mycobacterium is a prokaryote. Okay? Because we studied that prokaryotes are prokaryotes. The example is a bacteria. Okay? So what they're asking you 3 structural differences, not the functional, but structural differences between bacteria and animal cells. So basically, this is a question which is asking you to differentiate between prokaryotes and eukaryotes. So I need one structural difference from each one of you. Okay, starting from Abdul Rahman. Abdul Rahman, one structural difference between a eukaryote and a prokaryote. Have no true nucleus. ठीक है, प्रोकैरियोट डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन अ स्ट्रक्चरल फीचर जो बैक्टीरिया होगा यानी जो प्रोकैरियोट होगा, इट विल हैव अ सर्कुलर डीएनए व्हाइल एन एनिमल सेल विल हैव अ लीनियर डीएनए. नेक्स्ट, हेरा. They are having the prokaryotic having 70s ribosomes, whereas eukaryotic having 80s ribosomes. एक्सीलेंट, 70s और 80s आ गया. अच्छा जी, उस्मान, नेक्स्ट. Miss, prokaryotes don't have cell wall, whereas no. Prokaryotes have a cell wall, whereas animal cells lack cell wall. ठीक है, अच्छा, अगर डिस्टिंक्शन वाला कोई बच्चा पेपर कर रहा होगा तो वो उसमें लिखेगा कि सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या होती है प्रोकैरियोट्स की. Peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकन, एग्जैक्टली. देखो, एक डिफरेंस होता है ए स्टार और ए पेपर में. ए स्टार का जो पेपर होगा ना, वो पूरी बात कहेगा. वो कहेगा कि सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स में, लेकिन बैक्टीरिया में होती है. और वो बनी भी किस चीज से होती है. तो आपने देखा वो कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करता है. उससे दो सिमिलर पॉइंटर्स को वो ज्वाइन करेगा, वो एक आपको डिफरेंस बताएगा. ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है म्यूरिन की या पेप्टिडोग्लाइकन की. अच्छा जी, ठीक है.
आप लोगों ने मुझे कुछ कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस बता दिए और मुझे अभी तक सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल डिफरेंस पता चला है। अच्छा, फंक्शनल डिफरेंस ये होता है कि उनका, आपने जो मुझे राइबोसोम्स बताया वो आपने मुझे फंक्शनल डिफरेंस बताया। यस मिन्हा? हम फ्लैजिला का डिफरेंस लिख सकते हैं अगर एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रही थी, यही एक डिफरेंस होता है बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आई स्ट्रांगली इनकरेज, जो भी आंसर दे रहे हो मैं उसको एक्नॉलेज करूंगी, बट हम इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शंस जो होते हैं ना वो एक डिफरेंट चीज होती है। देखो, मेरा मेरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मेरा फंक्शन डिफरेंट, मेरा जो स्टमक है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उसका फंक्शन क्या, डाइजेशन। ठीक है, तो फर्क होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शन। अगर ये फंक्शनल फीचर्स कहे हुए होते तो उसमें आप 70s राइबोसोम सर्कुलर डीएनए बता रहे होते। ये डिफरेंस है, हम श्योरली इसको मानते हैं, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि इसको देख के मैं क्या बता सकती हूँ। मैं इसको देख के बता सकती हूँ उसमें सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं हो सकती। क्या मैं राइबोसोम्स देख के बता सकती हूँ? मैं तो राइबोसोम्स क्योंकि तो डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डॉटेड स्ट्रक्चर्स विल बी फाउंड इन बैक्टीरिया एंड दे विल बी आल्सो फाउंड इन एनिमल सेल्स। उसका शेप तो मैं वहां पे बैठ के नहीं डिफरेंशिएट कर सकती ना कि 70 ऐसा है 80 ऐसा है। ये तो मेरी नॉलेज है जिससे मुझे पता है कि ये 70s का राइबोसोम है या 80s का राइबोसोम। तो फौरन देख के मैं सेल वॉल बता सकती हूँ, फौरन देख के मैं फ्लैजिला बता सकती हूँ कि फ्लैजिला इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस। और कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताएगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। आप यहाँ लिख सकती हो कि इसके अंदर आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नजर नहीं आएगा। और एक और चीज, ये जो इतनी बड़ी सी हमें ये चीज नजर आ रही है इसे क्या कहेंगे उस्मान, ये क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल। तो क्या कैप्सूल हमें एनिमल सेल में नजर आएगी? नो। नो। तो हम कैप्सूल भी लिखेंगे, कैप्सूल लिखेंगे, फ्लैजिला लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लिखेंगे, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो सारे स्ट्रक्चरल हो। कैप्सूला लिख दिया मैंने, कैप्सूल। दिस इज कैप्सूल। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। एंजाइम्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये विब्रियो कॉलेरा है, अब इसको भी देख के हम कंफ्यूज नहीं होंगे। विब्रियो कॉलेरा को देख के आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो ना कि ये इसके बाहर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज अ फ्लैजुला एंड इट इज ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। देन यू कैन आल्सो सी अ थिकर लेयर जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो वी कॉलेरा भी हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, बट इट इज एन इम्यूनिटी का चैप्टर, आई बिलीव इन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो बट ये हमें समझ तो आ रहा है ना कि अगर ये स्ट्रक्चर दे दें तो ये हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे एज अ प्रोकैरियोट। ठीक है, सो इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, वही स्ट्रक्चरल फीचर्स का डिफरेंस मांगा हुआ है। अच्छा जी, हाउ फिगर 1.1 कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ प्लांट सेल। ठीक है जी, ये बताएं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस एज योर प्लांट सेल? सेल वॉल सेल वॉल, Have a एक्सीलेंट। large vacuole. लार्ज Have a वैक्यूल, large vacuole. ठीक है। ये भी एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, अच्छा टोनोप्लास्ट वाली बात हम कहाँ लिखेंगे? वैक्यूल में। वैक्यूल में हम क्या लिखेंगे? एक ही बात करके लिखेंगे, ये प्लांट सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल, लार्ज परमानेंट वैक्यूल एंड इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट और वैक्यूल की बात एक ही होगी, इसको हम दो पॉइंटर्स बना के नहीं लिखेंगे। अदर वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने फीचर पढ़ा था अबाउट प्लांट सेल, हमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं। अगर कल की रिकॉर्डिंग किसी, कल तो ये दो बच्चे प्रेजेंट भी थे, ये जो हमारे पास आज भी हैं, यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, फौरन देख के बता सकते हैं। इन दोज हु लिसन टू द रिकॉर्डिंग दे कैन आल्सो आंसर इट। छोटा सा जो ये साइटोप्लाज्म में एग्जैक्टली दिस स्मॉल रीजन इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू neighboring cells and this is known as Plasmodium. plasmodesmata। एग्जैक्टली, प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए क्वेश्चन में अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ लिख सकती थी क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस, बट यहाँ पे दे डिड नॉट प्रोवाइड मी एन इमेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद इन दिस सेल। ठीक है, और उन्होंने कहा था विथ रिस्पेक्ट टू फिगर 1.1, तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करें
दैट ए लेवल्स के पेपर्स में जो हमसे बात कही जा रही होती है ना उसी को आंसर करते हैं। अगर मैं ये लिखूं फिगर 1.1 के ही दिस इज योर कीवर्ड, आपने इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं देना, आपने वही डिफरेंस देना है जो यू कैन सी इन फिगर 1.1। मुझे यहाँ सेल वॉल नजर आए, मुझे यहाँ वैक्यूल नजर आ रहा है, बट आई कैन नॉट फाइंड क्लोरोप्लास्ट, राइट? यहाँ पे कोई ऑर्गेनल नहीं बना हुआ इस तरीके का, तो मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करके अपने मार्क्स को, ना मुझे मार्क्स मिलेंगे ना मैं लूज करूंगी। लेकिन यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा बना हुआ था, तो इसलिए दे लिटरली दे गेव यू एन हिंट कि आपने इसी के बारे में बात करनी है, कोई और बात नहीं करनी, ठीक है? तो ये तीन डिफरेंसेस, आप तीन एक्चुअली आइडेंटिफिकेशंस हैं ऑफ अ प्लांट सेल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार आता है। अच्छा जी, डायग्राम ऑफ ऑर्गेनल्स एज सीन अंडर द, अच्छा एक मिनट, लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग। कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्सेस इन टेबल 1.1 बाय एडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा राइट नाउ आई वांट यू, ये वाला तो अभी हम इसको आंसर नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो कैसा नजर आता है, बिकॉज ये डायग्राम अभी हम नहीं बना रहे। जब हम पेपर 3 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। बट आप लोगों ने मुझे ये बताना है वन फंक्शन, सेल टाइप, ये किधर मौजूद होता है, दिस नेम ऑफ ऑर्गेनल, इसको देख के हम बता सकते हैं, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम लाइन हमने कल पढ़ी थी। एंड ये जहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ, बस हमने वो चीजें फाइंड आउट करनी है। उस्मान, इसका आंसर क्या होगा इस वाले बॉक्स का? Miss chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, एक्सलेंट, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एक हमारे पास पाइल ऑफ कॉइन्स होता है। उस पाइल ऑफ कॉइन्स को हम क्या कहते हैं? ग्राम, Grana. ग्राना। और अगर एक हमारे पास होता है तो? Thylakoid. एक्सलेंट, ठीक है जी। गॉल्गी apparatus का फंक्शन, हेरा। modify proteins, मॉडिफाइज प्रोटीन, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, ठीक है? मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखिएगा। सिर्फ मॉडिफाई नहीं करता, उसको पैक भी करता होता है। मॉडिफाई और पैक कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिन्हा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किधर होता है? कहाँ? साइटोप्लाज्म। उन्होंने क्या है? सेल टाइप, किस सेल टाइप के अंदर होगा? एनिमल सेल, प्लांट सेल, कहाँ मिलेगा आपको? हमने कहाँ पढ़ा है? I don't remember. हाँ, मुझे आवाज नहीं आई। I don't remember, sorry. एनिमल सेल में ना, एनिमल में मिला है, एनिमल में पढ़ा था हमने, ठीक है? सो दिस इज फाउंड इन एनिमल सेल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट अब्दुल रहमान, ये क्या है? ये इस पे हमने कल बहुत डिटेल में बात करी थी, कौन सा स्ट्रक्चर है? Microtubules, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उसका ऑलरेडी एक फंक्शन देखो आ रहा है, असेंबल माइक्रोट्यूब्यूल। centriole, ये सेंट्रियोल्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है? क्योंकि हमने कल बात की थी ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो, आपने, मुझे पता है कि आप क्यों कंफ्यूज हुए हैं, आप उसके स्ट्रक्चर को देख कंफ्यूज हुए हैं। बट हमने बात की थी ना कि जो हॉलो स्ट्रक्चर बनता है वो बना हुआ ही माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। ये हॉलो स्ट्रक्चर बना, ये पूरी जो कॉम्पोजिशन है वो बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल से है। तो हमने उसके फंक्शन से इसको आइडेंटिफाई करा कि ये कौन सा ऑर्गेनल है। इन्होंने कहा प्रोड्यूस द माइटोटिक स्पिंडल, जिसको मैंने हाईलाइट किया था कि ये हम माइटोसिस के चैप्टर में इन डेप्थ में करेंगे, ठीक है? तो लेकिन ये फंक्शन अगर सेंट्रियोल से याद है तो हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक स्पेसिफिक बात मेंशन की थी अबाउट सेंट्रियोल्स, एंड सेंट्रियोल्स आर ओनली फाउंड इन व्हिच सेल? Animal cells. Animal cells. It is not found in plant cells. This is also one of the major differences between animal and plant cell. Okay. Now moving towards one function of this organelle, mitochondria. कौन आंसर कर रहा है इसको? A site of aerobic respiration or ATP producing cells. Excellent, excellent. Aerobic respiration. अच्छा, हम इसके दो functions भी लिख सकते हैं। वैसे तो उन्होंने यहाँ mention किया one function, but एक aerobic respiration है और एक ATP production है, ठीक है? ATP वाली बात हम यहाँ करेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी, ऑल राइट, इसको करते हैं, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं कि ए टू सी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ए तो जल्दी से बता दें, कोई बच्चा ए बता दे कि ए क्या है?
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, excellent. न्यूक्लियस। इतना बड़ा सा है तो न्यूक्लियस के अलावा कौन ही होगा? बी क्या लग रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सलेंट. सी क्या है? राइबोसोम। हम्म, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, रुके. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई? ये रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों है? मिस राइबोसोम से होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ रेटिकुलम कहाँ होता था? न्यूक्लियस के पास अटैच होता है। तो ये न्यूक्लियस से तो काफी दूर नहीं है? हाँ, गोल्गी एपरेटस। ये मिस ये न्यूक्लियस से सिमिलर है थोड़ा। न्यूक्लियस के बराबर में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शायद ये उससे सिमिलर नहीं है। ये वाला? यस। नहीं. देखें कुछ और थोड़ा सा आइडेंटिफाई. अच्छा, इसको आप देखने की कोशिश करें कि देखिए ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो सॉलिड एक्सप्लेनेशन ही होती है कि वो हमेशा न्यूक्लियस के साथ होगा. इतनी दूर अगर कोई चीज बनी हुई है तो वो कभी भी जो है वो आर नहीं होगी, ठीक है. अच्छा, ये बताएं, ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर? गोल्जी बॉडी। ये कॉल्जी बॉडी है, तो फिर ये क्या होगा? इसमें देखिए स्मूथ आपस में इंटरकनेक्टेड एंडोप्लाज्मिक। है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. है? देखो, इसमें इसकी रफनेस बहुत ज्यादा है. इसकी रफनेस इतनी ज्यादा है, इसमें आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं आर ई आर. बट ये उतने डॉटेड ब्लैक नहीं है. ये इमेज की खराबी हो सकती है, बट यू डोंट हैव टू वरी कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा. ये इमेज क्वालिटी बहुत खराब है. वरना ये स्मूथली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एस ई आर है, दिस इज नॉट आर ई आर. आरईआर की बहुत ज्यादा डॉटेड अपीयरेंस होती है, इससे इससे भी ज्यादा होनी चाहिए. इतने उसमें ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं, बट ये देखो उसके मुकाबले में इतनी रफ अपीयरेंस नहीं दे रहा जितनी इसकी है. और आरईआर की तो क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि वो हमेशा न्यूक्लियस के साथ होगा, कभी भी साइटोप्लाज्म में अलग से आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है. सी इज एस ई आर. ठीक है, ये आपका एस ई आर है. अब फंक्शन ऑफ एस ई आर क्या होता है? स्ट्रक्चर सी का फंक्शन? मिस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की। लिपिड. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल एग्जैक्टली, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म और लिपिड का सिंथेसिस. ठीक है जी. एक्सप्लेन इस वाले को आंसर करें. Because they're too small than 200 nanometer that they can't be seen. Yes, they have a smaller size, less than 200 nanometer. This is why we cannot see it under light microscope. ठीक है जी, तो इसकी काफी बड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, 2 मार्क्स की. इसमें हम रेजोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे. दैट लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 200 nanometers while structure C is less than 200 nanometers. This is why we cannot see this under light microscope. Structure C जो है वो आपका है less than less than 200 nanometers. This is why we are unable to see it under light microscope. ठीक है. Suggest one disadvantage of the electron microscope compared to the light microscope for the study of cells. मिस वी कैन ओनली व्यू डेड स्पेसिमेंस। Dead specimen देख सकते हैं. And what else? They are not colorful images, so we They do can't not see. produce colorful image. Excellent. ठीक है, दोनों आपने पॉइंटर्स को कर लिया. जो भी आप डिसएडवांटेज लिखना चाहो इनमें से कोई एक लिख लो. अच्छा ठीक है, जहां पर एक बात दे हैव मेंशन्ड कि जस्ट राइट वन डिसएडवांटेज, देन try to only write one disadvantage. Do not try to be over smart and write 2 3 disadvantages. मार्क्स आपको 1 के ही मिलने हैं, ठीक है. 1 mark for 1 sentence. अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो 2 marks for 2 sentences, ठीक है. तो हम वही आंसर करेंगे जो हमसे पेपर में कहा गया होगा. अच्छा जी. इस अगर आप किसी के बारे में कंफ्यूज हो और दोनों लिख दें और एक सही हो एक गलत, तो उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं? मिल तो जाएंगे, बिकॉज एक आपका सही होगा ना उसमें, तो मार्क्स मिल जाता है. अच्छा जी, इसमें कुछ आइडेंटिफाई करना है? नहीं. चलो हम खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ये बताएं सी क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ई क्या है? प्लाज्मिक। ई एस ई आर है.
Yes. Smooth. हम्म। अच्छा जी, ये जो जंक्शन होगी इसके बीच में वो क्या होगी? Plasmodesmater. ठीक है, और ये क्या है? ए क्या है? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। और बी क्या है? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाला भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कभी कभी शेप आपको सर्कुलर मिल सकती है। इसका मतलब होता है कि ये अंडर डिवीजन के प्रोसेस में है या इसके अंदर कोई सेल्फ रेप्लिकेशन चल रही है। तो अगर कभी स्फेरिकल भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाए तो उससे घबरा नहीं जाइएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों है, ठीक है। अम्म, अच्छा, सी डी हमने कर ली लिया इसको। इसका बता दें जल्दी से, ये जो 1 मार्क का है। वन रोल ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, ऑलरेडी डिड दिस वन। Nutrients. It has cell sap and provides nutrient to the cell. ठीक है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा को इसलिए स्किप करवाए हैं बिकॉज अभी हमने उसका इन डेप्थ रोल नहीं पढ़ा। विल स्टडी इट इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अलग पूरा चैप्टर है। तो जो चीजें मैं स्किप करा रही हूँ इसलिए नहीं करा रही कि अभी वो इसलिए करा रही हूँ स्किप ताकि हम उसको अच्छे से बाद वाले चैप्टर्स में कवर कर लें। ओके, चलिए, आई थिंक दिस इज इट फॉर पेपर 2। हाँ, ये सारी चीजें थोड़ी बात ही हैं, तो हम बात नहीं करेंगे। इधर आ जाते हैं। ये एक बड़ा, इस क्वेश्चन को जो है ना वो हाईली इंपॉर्टेंट करके मार्क करें। बिकॉज इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत दफा रिपीट होकर आता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थॉटफुली सोचें और फिर मुझे इसका सही बिल्कुल आंसर दीजिएगा। लो होती है इनकी और मैग्निफिकेशन भी लो होती है। 38 का आंसर क्या है? डी। डी। यस। यस, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रेजोल्यूशन लो है। रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर्स है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं रेजोल्यूशन तो हाई है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनको याद तो होता है पर वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि 0.5 तो स्मॉल है तो वो यहाँ लो करके आ जाते हैं, और 200 है तो हाई है उसको वो करके आ जाते हैं। प्लीज यहाँ पर ना 200 नैनोमीटर्स की बात हो रही है और 0.5 नैनोमीटर्स की बात हो रही है। 200 नैनोमीटर्स बहुत कम रेजोल्यूशन है। कम का मतलब है कि वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकता है और उससे छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। दिस इज व्हाई वी आर सेइंग कि रेजोल्यूशन कम है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा कि 200 और 0.5, हम मैच की मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी बात करें। तो विजिबिलिटी 200 नैनोमीटर से कम होती है एज कम्पेयर टू 0.5, ठीक है। तो 39 D. बी। Last one, D. डी, यस डी। Hmm. 46. बी। B. Excellent. 47. B. B. 48.
48. Enzymes are अच्छा बताएं enzymes की नेचर क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है? राइबोसोम। आर Rough endoplasm. यस, तो आर कहाँ है यहाँ पे? C. सी। ठीक है, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ट्विस्ट एंड टर्न होकर आता रहता है कि एंजाइम्स की सिंथेसिस कौन कराता है. सो फॉर दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आर. ठीक है, तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं लेवल्स में. ओके, ये वाला जल्दी से बताएं. 49. B. B. 54. सी। C. Mitochondria is present in prokaryotic cells. D. D. साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होता है, और राइबोसोम्स होते हैं 70S के. माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट. ना न्यूक्लियर एनवेलप होगी क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल ही यूजलेस है. माइटोकॉन्ड्रिया भी यूजलेस है. इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड कैन नेवर बी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके. 56. सी। 58. अच्छा, 58 हैज एरर क्योंकि इसमें काफी सारी नहीं, are found in plant cells but not in animal cells. इसमें एरर है बिकॉज उसमें उन्होंने दो आंसर सही दिए हुए थे. अच्छा, अगर इस तरीके का एनी क्वेश्चन इट कम्स इन योर CI तो वो फिर डिसवैल्यू हो जाता है, उसका आपको 1 मार्क खुद ही मिल जाता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डिड दिस क्वेश्चन yesterday, जिसको हम दोबारा नहीं कर रहे. रिकॉर्डिंग में बच्चे जो है वो देख लेंगे. होपफुली वो आज अपलोड हो जाए. Which organelles are found in the cells of both eukaryotes and prokaryotes? D. 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 Because Golgi apparatus is only found in eukaryotes. ये वाले तीनों are only found in eukaryotes, और ribosomes 70S 80S are found in eukaryotes and prokaryotes. अच्छा जी, ये बताइए कि if I give थोड़ा सा homework, then will you be able to do it? 5 days का बीच में break है. You need to submit your homework by Friday. दे दूँ homework? Hello, I'm asking from you. आप तो मुझे जवाब नहीं देते, मुझे लगता है मेरी आवाज ही नहीं आ रही. अब्दुल रहमान, हेलो. यस। हाँ जी, यस। बोलिए. यस और नो, होमवर्क दे दूँ ना दूँ? दे दें। दे दें। चलिए ठीक है, तो दे मैं देना। थोड़ा सा ही होमवर्क दूंगी, बहुत ज्यादा नहीं दूंगी. ऑफ सेल्स, क्योंकि फिर इस वीक के बाद जो अब हमारा एक नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम सेल मेम्ब्रेन भी खत्म कर लेंगे. तो फिर उसके जो थर्ड वीक हमारा होगा, यानी अभी का फर्स्ट सेकेंड फिर नेक्स्ट वीक, और फिर जो थर्ड वीक होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन एंड सेल का टेस्ट होगा. राइट, सो उसके लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए ना टेस्ट देने से पहले. तो थोड़ा सा होमवर्क आप तो करें पास पेपर्स का, थोड़ा सा हमने साथ कर लिया. ठीक है, तो इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन ही होंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो फिर मैं आपको होमवर्क जो है वो आज रात तक पोस्ट करती हूँ. Other than this, I'm going to end this meeting. Then you can rejoin this meeting using the same link and we'll begin with cell membrane. Okay?